Hello bachcho, welcome you all in this physics video, and in today's video we will discuss about this chapter which is of work, energy and power. So student, in our previous video I have discussed about of this work done. Okay, so there what is work done we have discussed about, and how do we calculate this work done. So there we are having the formula of work done. It is given by that of force into displacement, and if that force and displacement are at an angle to each other, so that moment it is taken as Fs cos theta. If in the diagram we will see this, so then there it is a ground and a body is placed over it. So a force is applied to this at an angle with the ground. So this is theta over here. So initially the body is at A position. So when the force is applied now, this moves to another position. Let it to be this B position, and it goes a displacement from A to B. That is S. So therefore the work done in this case it becomes Fs cos theta. So this is already in our previous video we have discussed, and in that types of work done we also discussed. Okay, so you can go and see that video. Now in today's video, let us to find over here student that work done while we are going to lift the body up. Okay, so therefore we are taking over here it is work done by the force of gravity. So when we lift anything up, so how much is that work done? Okay, so this we are going to find in this video today. Okay, so student, here we have to see that just before of this, let me do this. Let us suppose over here this is the ground, and a body is placed over here. Body is placed on the ground. Okay, so therefore this body is having its mass, let it is having the mass m. Okay, and this is on the ground, so this is the A position. So when we are going to lift it up, so here I am going to lift it up to this position. So let us suppose this is the new position, and let it be B. Okay, now how much we have moved it from A to B. A से B हम उसको कितना लेकर के गए, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है A से B की, वो क्या होगी, हाइट की फॉर्म में आ रही है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी हो रही है, h के इक्वल हो रही है. दैट इज इक्वल टू द हाइट, ठीक है, A और B के बीच का जो गैप है, ठीक है. सो हाउ मच वर्क नाउ वी हैव डन इन दिस सिचुएशन. सो सी ओवर देयर बच्चों, हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क डन कैसे निकाला जाता है, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाला जाता है, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला ओवर देयर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो अब हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स है, हाउ मच फोर्स वी हैव अप्लाइड एंड हाउ मच इज दैट डिस्प्लेसमेंट. तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो A से B तक लेकर के जा रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, h के इक्वल हो रही है, ठीक है. दिस इज इक्वल टू h. Now just to note over here, I am having this duster on my palm, ठीक है. If I want to lift it up, अगर मुझे बच्चों इसको ऊपर उठाना है, कम से कम कितनी फोर्स लगानी है, मिनिमम फोर्स विच शुड आई टू अप्लाई ऑन दिस दैट डस्टर सो दैट आई कैन लिफ्ट इट अप. तो मिनिमम फोर्स क्या होगी बच्चों, जितना इस डस्टर का वेट होगा उतनी कम से कम फोर्स मुझे लगानी ही होगी. So therefore here that the force which we need to apply it is equal to the weight of the body. So we have taken over here m is the mass of body, and when we multiply it with g, so it becomes weight of the body. तो इसलिए कितनी फोर्स हमने अप्लाई की, mg के इक्वल अप्लाई की. तो इसलिए बच्चों हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, thus becomes an mgh. So this is that work done. But this is the positive work done. ये बच्चों ये क्या हो गया, ये work done तो पॉजिटिव हो गया. So this work done we did on that body. ये हमारा वर्क डन है बच्चों उस बॉडी के ऊपर, ठीक है. लेकिन if you will check
ग्रेविटी ने किस तरफ खींचा था बॉडी को, ग्रेविटी ने तो नीचे की तरफ खींचा, और हम किस तरफ बॉडी को लेकर के गए हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा वर्क डन है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी, सो दिस विल बी माइनस ऑफ mgh, दिस इज माइनस ऑफ mgh। तो ये जो वर्क डन है बच्चों, ये माइनस ऑफ mgh है, ठीक है। सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड दिस इज आवर वर्क, ये हमने वर्क किया, हमने उस चीज को ऊपर उठाया, जिस तरफ फोर्स लगाई थी उसी तरफ बॉडी भी डिस्प्लेस हो रही थी, इसलिए हमारा था एक पॉजिटिव वर्क। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट वो वर्क क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर दैट व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन in raising the object, in lifting the body, then we have to use over there it is mgh, okay. Now let us know over here student what the unit we should to use for the measurement of work done, ठीक है। तो units की हम बात करते हैं, units। So there we are having the formula for it is work done formula force into displacement F into S, when force and displacement both are in same direction, ठीक है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ होते हैं तो ये वाला फार्मूला, क्योंकि एंगल इस वक्त क्या लिया जाता है, 0 डिग्री लिया जाता है, दिस टाइम एंगल इज 0 डिग्री, ओके। नाउ टू नोट दैट फोर्स के स्टैंडर्ड यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट क्या होते हैं, मीटर, है ना। तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया, जो SI यूनिट्स हैं वर्क डन के SI यूनिट that are Newton meter, or this group of Newton meter it is said to be joule, this is joule, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास this is joule, J, it is on the name of the scientist, so this is joule, okay. Now these are the standard unit, now those which are the CGS unit, तो CGS यूनिट की अगर हम बात करें बच्चों, तो उस वक्त ये जो फोर्स है, फोर्स की छोटी यूनिट क्या होती है, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट जो छोटी यूनिट आएगी दैट इज सेंटीमीटर, तो इसलिए डाइन सेंटीमीटर। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ यूनिट नेम्ड एज अर्ग, तो इसको अर्ग बोला गया है। सो दैट्स वी कम टू नो ओवर हियर दोस यूनिट्स व्हिच इज यूज्ड बाय अस फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन। तो स्टैंडर्ड में जूल का यूज किया जाएगा और सीजीएस के अंदर अर्ग का यूज किया जाएगा। नाउ लेट अस टू चेक ओवर हियर हाउ दिस जूल एंड अर्ग आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एक जूल कितने अर्ग के बराबर होगा, इक्वल होगा, हाउ मेनी अर्ग, ठीक है। सो इन दिस स्टूडेंट वी नीड टू नो डाउन, एक जूल का मतलब हो गया 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, है ना। तो हमारे पास 1 न्यूटन क्या होता है हमारे पास, तो फोर्स जो था ना वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसलिए फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो मास की होती थी किलोग्राम और एक्सेलरेशन की होती थी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, है ना। उस ग्रुप को बोला गया वहां पर, तो इसलिए क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इनटू मीटर, ये वाला मीटर यहाँ पर, ठीक है। सो वी गॉट ओवर हियर इट इज व्हाट, मीटर का स्क्वायर, सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। सो वी वांट टू चेंज इन सीजीएस यूनिट, ठीक है। हमने क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड तो सेम ही रहता है दोनों सेट में, तो इसलिए 1 किलोग्राम हमारे पास 1000 ग्राम्स के इक्वल हो गया, और जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर या फिर 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर वी गॉट ओवर हियर इट इज दैट 1000 यू कैन राइट इट एज 10⁻³ ग्राम। So here it is 10⁻³ gram into that of 10⁻² का 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर, this is over there is the whole square, so then we got here it is as 10⁻³ divided by second का square as well, okay, so there it is 10⁻³ gram into square of this, so that will multiply, here it is 10⁻⁴ centimeter square and
per centimeter square. So we got over there how many zeros are going to come. So there are 3 zeros are here and 4 are in it. So total 7 zeros. Okay, so thus we got that it is 10 to the power 7 and the units are CGS. So it is erg. So thus there is 10 to the power 7 erg in 1 joule. Now let us look over here. There are the other units which is used for the measurement of this work done. ठीक है, तो जैसे हमारे पास बच्चों यहाँ पर मेगा जूल भी यूज किया जाता है. ठीक है, तो मेगा जूल, मेगा हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है, दैट इज 10 की पावर 6 है ना. मेगा जो 10 की पावर 6 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए 10 की पावर 6 दैट वी कैन राइट. thereafter it is गीगा जूल. गीगा जूल, सो 10 की पावर 9, जो गीगा है वो 10 की पावर 9 को रिप्रेजेंट करता है. So thus we can have it is gigajoule as well. Okay, so the different units we can use for its measurements. Now to note over here, students, I am having there is a body which is at this position and its mass is like it is m. So I want to lift it up to this height. I want to lift it up to this height h. ठीक है, so how much is that work done? So work done will be equal to mgh है ना. कितना वर्क डन होगा इस वक्त? mgh के इक्वल होगा. What student if I do over here, मैं क्या करता हूँ, इस ये जो ग्राउंड है इसके ऊपर इस सेम ऑब्जेक्ट को इस स्केयर की हेल्प से ऊपर ले जाता हूँ. ठीक है, स्केयर की हेल्प से मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर जिसका मास m था उसको यहाँ पर पहुंचा दिया जाता. So this quantity is at h height from the ground. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितना वर्क डन किया गया होगा उसको ग्राउंड से h हाइट तक ले जाने के लिए. अगेन इन दिस केस हाइट आपने देखनी है, कितनी हाइट है इसमें, mgh. तो जो वर्क डन किया गया है वो mgh होगा. ठीक है, एंड इफ वी विल सी इन दिस केस दैट आई एम हैविंग दैट देयर इज दिस ग्राउंड एंड द बॉडी इज ऑफ मास m. Okay, so it is at this position A. Now I am taking the body up. So first I am taking it to the right, thereafter upside, thereafter to the left, thereafter upside, thereafter to the right, thereafter once again. Okay, so these different path I have taken, and after that this body is at B now. Okay, so this B position is suppose that this is again at h height from the ground. Okay, so what will be my work done in this situation? So student again that work done will be mgh. तो जो हमारे पास वर्क डन है वो mgh ही होने वाला है. Whether we changes our path, so you have to take only direct distance, direct gap between final and initial. So similarly over here हमारे पास जो डायरेक्ट गैप जो था वो ग्राउंड और उस पोजीशन के बीच में, और सिमिलरली ओवर है ग्राउंड और उस जो पोजीशन के बीच का डायरेक्ट गैप. तो इसलिए जो वर्क डन है तीनों ही केस में, अगर वो तीनों केस में सेम हाइट तक बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, सो दिस इज सेम, इट इज mgh. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ वी आर गिवन द ग्राफ. जैसे बच्चों हमारे पास ये एक ग्राफ ले लिया, दैट इट इज graph which is given between that force and this side it is displacement. ठीक है, ये displacement हमारे पास है, displacement. So if the force is constant, तो अगर हम बात करते हैं for constant force हमारे पास क्या होगी बच्चों, ऐसी फोर्स जिसकी वैल्यू फिक्स होगी. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू जो वो फिक्स है, तो फिक्स है तो इसका मतलब एक लाइन जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगी. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ O से लेकर के यहाँ तक डिस्प्लेस किया. ठीक है, इस पोजीशन तक डिस्प्लेस किया, दैट इट इज A. सो नाउ आई गॉट ओवर हियर दिस डिस्प्लेसमेंट, लेट इट बी S, और एंड दैट फोर्स व्हिच आई हैव अप्लाइड ओवर हियर, this is F. Okay, so now how much is my work done in this case when force is constant? ठीक है, so in this situation my work done is equal to, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा.
होगा, है ना। तो इसलिए हमारे पास फोर्स दिस इज गिवन बाय O to C, this will give us the measurement of force, and O to A, this will give us the measurement of displacement. तो बच्चों ये तो हमारे पास क्या हो गया, O to C into O to A. So we got over here these are the two sides of this rectangle. तो ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गया. तो that means here the area of rectangle if you will calculate, so that will help us to find out the work done. तो इसमें वर्क डन को एरिया ऑफ रेक्टेंगल से निकाला जाएगा when force is constant. Okay, now let us use force over here. The force is going to be variable. अब हम यहाँ पे सेकंड केस फोर्स कर लेते हैं, ठीक है. दिस इज द सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था हमारे पास, ठीक है. तो सेकंड केस में here force is acting upward, ये फोर्स जो ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड राइट साइड. ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारे पास हो रही है राइट साइड को. दिस इज रेफरेंस पॉइंट O, ठीक है. नाउ वी आर सेइंग ओवर देयर इज वेरिएबल फोर्स, ठीक है. तो फोर्स वेरिएबल है, तो इसमें बच्चों क्या होगा हमारे पास, ये जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो दस वी विल गॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रोपोर्शनल है. तो इसलिए क्या होगा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी. तो लेट अस सपोज हम क्या करते हैं, इसको O से लेकर के A तक S डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं. लेट अस टू गिव इट S डिस्प्लेसमेंट O से A तक, ठीक है. तो कितनी फोर्स लगाई आपने इसको O से A तक ले जाने के लिए. सो नोट ओवर दैट इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहां पर डालो. सो यू विल फाइंड दैट दिस इज दैट फोर्स. ये वो फोर्स है जो आपने उसको O से A तक डिस्प्लेस करने के लिए यूज की है, ठीक है. सो देयरफॉर दिस वर्क डन नाउ. तो अब बच्चों हमारे पास वर्क डन क्या होगा, ठीक है. सो दिस वर्क डन एट दिस मोमेंट इट इज इक्वल टू, तो ये जो वर्क डन है बच्चों, ये हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है, इसके नीचे ये जो एरिया है दैट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट दिस वर्क डन. सो दैट इट इज 1/2 that of base is what, OA is base and height is what, height is the C, make it D point, so OC. So that's what here it is 1/2 force into displacement. So this is equal to work done. Now student, why there is half? So just to check that one, ये हमारे पास टोटल क्या बनता है, रेक्टेंगल बनती है ना, टोटल रेक्टेंगल बनती. लेकिन हमें क्या करना था, ओनली इस लाइन के नीचे वाला जो हमारे पास वर्क डन था वही फाइंड आउट करना था. तो इसलिए ये जो लाइन है ये क्या करती है, उस रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. तो इसलिए इसके एरिया का हाफ क्या होगा, दैट विल गिव अस दिस वर्क डन. ओके, सो दिस दैट द formulas which we have to use for the calculation of work done. So that's all from today's video. Thank you for watching this video.